नाइकी के टीम ने हमें इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया। पूरे इंडिया में से 5 to 6 पीपल को चूज़ किया था। देयर वाज अ बिग कार वेटिंग आउटसाइड विद माय नेम लाइक दिस। I was so surprised. I didn't know this happens in real life. She is the only kid in almost 3000 students जैसे 15 से 20 मिनट सुबह लेट आने का परमिशन है। उससे एडवांटेज ये हो जाता है कि सुबह 1 घंटा प्रैक्टिस करके पहुंच जाते हैं टाइम पे। 3 to 4 hours of practice a day. Do you feel tired? मैं प्रैक्टिस पे भी वर्क करती हूँ और रिकवरी पे भी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ही प्रैक्टिस करते रहो। थॉट में क्लैरिटी है कि जो इसका लाइफ का आगे का गोल है वो क्रिकेट है। तो ऑफ कोर्स एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट सेकेंडरी। विराट कोहली के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ने कहा है कि पेरेंट्स और सोसाइटी एट टाइम्स स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस को एक्नॉलेज नहीं करती है। सो जो चैलेंजेस आते हैं ख़ास तौर पे जो सोसाइटी वाले जो हैं वो 4 लोग जो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। मतलब द मोमेंट आई टोल्ड देम कि मैं होम स्कूलिंग का सोच रहा हूँ, ओ हो। Welcome to Podcast with Professionals. I'm your host Kirti Tiwari, and with us today, a special little guest, Ramraj Chaudhary. When our parents moved from Gurgaon to Vadodara, they weren't just changing cities. They were creating a space for fresh air, open skies, and endless possibilities for a dream that was just a beginning to grow. Cricket soon became more than a game in Ramraj's life. It became a language she spoke every single day. One evening, with innocent determination in her eyes, she just asked her father a simple question. Papa, can I play cricket? Her father said, why not? From that moment, the journey began. Father and daughter turned the game into a shared classroom, learning from the videos, studying the fundamentals, understanding the ABC of cricket, alignment, balance, and completion. Day after day, practice became the routine, discipline became the habit, and resilience became her greatest strength. Even when a serious on-field accident once cost her 3 teeth, Ramra did not let the game slip away from her heart. Within 48 hours, she was back on the field, stronger, braver, and even more determined. And the cricketing world has already begun to notice. At just 7 years of old, Ramra earned her first sponsorship. She was invited by the WPL team, Gujarat Giants, spending a special day in the dugout with players, coaches, and support staff. She has shared her story on My FM, Big FM, and Radio Mirchi. Also been featured by Cricket Graph and sports journalist Toss Rizvi, and even traveled to Mumbai's famous Mehboob studio for a global Nike brand shoot. But beyond the interviews and recognition lies the real story. A young athlete who practices 4 hours every weekday and 6 hours on weekends. A child who wakes up every morning carrying one powerful dream in her heart to one day wear the Indian blue jersey. The story of a passion, perseverance, and a dream that grows stronger with every sunrise. Today, we bring you the inspiring journey of a little girl with a very big dream, the story of Ramraj Chaudhary. Okay, so let's get to this first. Ramraj Chaudhary, right? मतलब क्या है इस नाम का? आपको बताइए प्लीज़। ओके, ये नाम बहुत यूनिक है और मुझे पता होगा आपने ये नाम ज़्यादा सुना है नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, मेरे लिए भी नाम बिल्कुल ही नया है। बाय द वे, मेरे मम्मी पापा को ऑलमोस्ट 1 वीक के लिए ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ा ये नाम रखने के लिए। पहले तो दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी एंड इट इज एल्डर अप्रूव्ड। दादाजी, नाना जी, नानी सबसे अप्रूव्ड है पूरा। अप्रूव्ड। फर्स्ट 3 लेटर्स राम बनाते हैं। हाँ, इसीलिए सो दैट इज एल्डर अप्रूव्ड एंड द प्रोनाउंसिएशन इज रम प्लस रा. People often get it wrong while reading it in English. About the meaning, in English, it's splendor, and in Hindi, it's ojas. okay. The first light of the sun, वो पर्पलिश रेडिश कलर आता है ना सूरज उगने से पहले, वही। आपको स्टार्टिंग में कैसा लगा था ये नाम? सही लगा था या फिर ऐसा लगा था कि नहीं चेंज करना चाहिए मेरे को? अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मैं राम की भक्त भी हूँ। वेरी गुड। जी, एक तो नाम यूनिक है, yes. दूसरा इसमें राम वाला एंगल आ गया, राम भगवान का। तीसरा ये संस्कृत और वैदिक नाम है। अगर आप आज भी मतलब ट्राई करेंगे ना तो आपको नॉर्मली इस नाम के सोशल मीडिया से लेके नॉर्मल अगर गूगल पे भी डालेंगे बहुत कम प्रोफाइल्स मिलेंगे, बहुत कम लोग हैं। तो वी आर हैप्पी, राम आ गया, न्यूमरोलॉजी आ गई, संस्कृत है, वैदिक है, क्लोज टू आवर हार्ट, तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट। मतलब शुरू में थोड़ा था कि सुना ही नहीं है, बट नाउ दैट इज़ यूनिक एंड वी लाइक्ड इट।
स्टार्टिंग में मेरे को भी आप मतलब जैसे मैंने नाम पढ़ा था रमरा, तो मैं भी था रमरा है, रामरा है, या फिर तो बाद में वो चैलेंज आता है बिकॉज देवनागरी जो है हिंदी का हमारा वही एक लिपि है जिसमें कुछ भी लैंग्वेज दुनिया का उठा लो एग्जैक्टली लिखा जा सकता है और एग्जैक्टली वैसा पढ़ा जा सकता है। इंग्लिश का रहेगा वो BUT बट PUT पर चलता रहेगा। सही बात है, सही। ओके रामरा, मेरे को ये बताइए कि आपका क्रिकेटिंग जर्नी कब से स्टार्ट हुआ? कुछ ऐसी कुछ याद है आपकी जो अभी से स्टार्ट, अभी तो बननी स्टार्ट हुई है, बट कुछ तो आप बताइए हमको इसके बारे में। हाँ, तो हमने कैजुअली स्टार्ट किया था कि नॉर्मल कि मुझे खेलना है वैसे माइंडसेट लेकर स्टार्ट किया था, पर अभी नाउ आई एम एक्चुअली फोकसिंग ऑन क्रिकेट। तो अभी मुझे याद है 2024 वर्ल्ड कप में जब इंडिया फाइनल जीती थी तब मैं और मेरी फैमिली बाहर निकले थे। सब लोग इतने खुश नाच रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, सो मच लव फॉर द गेम एवरीवेयर। This popped a question in my mind, which I asked to my father. I asked, Papa, can I play cricket? He said, do you really want to? I said, of course. So वहीं से क्रिकेट घर में और जीवन में आ गया। आपको थोड़ा डर सा लगा था स्टार्टिंग में कि क्रिकेट जैसे गेम उसमें फास्ट है ना ऐसा? सी सो सिंगल चाइल्ड है तो मतलब वो सिंपल कोट है ना कि रेज योर डॉटर एज अ प्रिंसेस बट द वॉरियर वन। तो ये मतलब ना तो बचपन में कभी इसे गोदी में लिया, हमेशा पैदल चली थी। ये 1.25 साल की थी तब से मार्शल आर्ट्स बेसिक सेल्फ डिफेंस वगैरह सिखाया था। क्रिकेट से पहले शी ट्राइड बैडमिंटन ऑल्सो बट मतलब मतलब जो वर्ल्ड कप वाला मोमेंट था ना, जो इसने देखा कि मतलब दिवाली वाली रौनक वो ट्रिगर्ड हो गया थोड़ा, तो दैट लेफ्ट एन मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन हर माइंड। और वहाँ पे बोला मैं ठीक है बच्ची है, अगर ये ट्राई करना चाहती है लेट इट बी। वहाँ से फिर रामरा का स्टार्ट हुआ गेम कि नहीं अब ये गेम मेरे को स्टार्ट करना है, ये खेलना चाहिए। करेक्ट, ऐसा ही है, करेक्ट ऐसा ही है ना सही रामरा? कहा। वेरी गुड। ओके सो रामरा, मेरे को अपने प्रैक्टिस आज के बारे में बताइए। आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, आई मीन क्रिकेट के लिए? हाँ, वो डे पे डिपेंड करता है। ओके अगर वीकडे है तो 4 घंटे का स्कोप मिलता है क्योंकि स्कूल जाना होता है। अच्छा लगता है आपको स्कूल जाना? काइंड ऑफ। ठीक है। I would rather choose a weekend so that I could do more practice. ओके ओके अगर वीकेंड है तो 6 घंटे का स्कोप रहता है क्योंकि स्कूल नहीं जाना होता और भी ग्राउंड पे जाके घर पे भी आके प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर फिटनेस भी कर लेते हैं, एजिलिटी ट्रेनिंग कर देते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं। और यही आपको से ऐसा लगा, ऐसा मतलब कभी इसको स्कूल हम ज़्यादा मतलब अभी से स्टार्ट कर दिया ट्रेनिंग वगैरह, तो ऐसा कुछ आगे पीछे का? सी थॉट में क्लैरिटी है कि जो इसका लाइफ का आगे का गोल है वो क्रिकेट है। तो ऑफ कोर्स एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट सेकेंडरी। एजुकेशन के लिए इसके पास बहुत टाइम रहेगा। अभी आने वाले कुछ साल डिसाइड करेंगे कि अगले 5 साल में जितना मेहनत करेगी बचे हुए 25 साल 20 साल कैसे जाने वाले हैं। तो उसको क्रिकेट पे अगर फोकस करना है तो क्रिकेट पे ही चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तरफ से पूरा अप्रूवल है। स्कूल भी माइंड नहीं करती क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आती एजुकेशन वाइज। इसका अटेंडेंस थोड़ा रहता है बट ओवरऑल देयर इज़ नो इशू। फोकस क्रिकेट पे है, उसी पे रखा है। स्कूल सपोर्टिव रहता है? हाँ जी, स्कूल सपोर्टिव है। इसे एक्सेप्शन भी मिला है। शी इज़ द ओनली किड इन ऑलमोस्ट 3000 स्टूडेंट्स। जैसे 15 से 20 मिनट सुबह लेट आने का परमिशन है। उससे एडवांटेज ये हो जाता है कि सुबह 1 घंटा प्रैक्टिस करके पहुंच जाते हैं टाइम पे। एल्स ट्रैफिक में वगैरह सारा मैनेज करने में, असेंबली अटेंड करने में वो आधा घंटा चला जाता है और रोशनी बिना कर नहीं सकते। तो बात सही है। के बाद में प्रैक्टिस होकर फिर फटाफट भागते दौड़ते पहुंच जाते हैं टाइम से। 3 to 4 hours of practice a day. Do you feel tired? प्रैक्टिस करोगे तो ऑफ कोर्स यू विल बी टायर्ड ना। लाइक कुछ करना चाहते हो एंड यू आर रिस्पॉन्सिबली डूइंग इट। मैं प्रैक्टिस पे भी वर्क करती हूँ और रिकवरी पे भी। गुड। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ही प्रैक्टिस करते रहो फिर इसका कोई चांस ही नहीं है।
सी जो इम्पोर्टेंट ये है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल टर्म्स हैं जिनको लोग मिस कर जाते हैं. अगेन मैंने भी कुछ ढंग के लोगों से बात करी तो सीखा हूँ कि जब ये अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही है किसी भी तरीके का, इवन वर्कआउट भी कर रही है, तो प्री स्ट्रेचिंग जो है इम्पॉर्टेंट है, राइट, बट दैट इज़ ऑप्शनल. पोस्ट जो ज़्यादातर 99% लोग नहीं करते हैं. आई मेक श्योर कि ये मतलब अपना कोई भी वर्कआउट, कोई भी प्रैक्टिस ख़त्म कर रही है तो ये बाद में भी स्ट्रेचिंग करे, तो दैट हेल्प्स ऑफ कोर्स. और उसका स्लीप साइकिल वगैरह सारा मैनेज करना, वो मोर और लेस आई एम लाइक हर मैनेजर, प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनेजिंग एवरीथिंग. तो मतलब जब सोने का टाइम होता है तो मैं नारे लगाने लगता हूँ, सो जाओ सो जाओ, जब उठने का है उठो उठो, वही चलता रहता है, तो मैनेज हो जाता है. टिपिकल पेरेंट्स थिंग, सो जाओ टाइम हो गया, फिर उठ जाओ फिर टाइम हो गया. तो हाउ डू यू लाइक इट कि पापा बस सुबह बोल रहे कि उठो उठो जल्दी, सोना नहीं है, ऐसा It's fine. It's fine. I can do it for cricket. ओके. सो हाउ डू यू मैनेज योर स्टडीज़ ऑल्सो? आई मीन आप प्रैक्टिस भी जाते हो, सुबह सुबह जाते हो, फिर शाम को भी कभी कभी वीकेंड्स पे भी है, वीकडेज पे भी है. तो इसके साथ आप पढ़ाई को कैसे फोकस रख पाते हो आप? अगर आप मेरी स्कूल में जाके किसी भी टीचर को बोल दो कि रमरा क्या एक बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है, तो वो कहेंगी हाँ. मैं क्लास में फोकस करती हूँ ताकि मुझे घर पे टाइम ना देना होए. एग्ज़ाम्स भी, बाय द वे मेरी अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुई है. हो, हाँ, वेरी गुड. तो एग्ज़ाम्स में भी मैं सारे दिन जो बीच बीच में ब्रेक्स आती है पढ़ाई के लिए, उसमें भी मैं सारे दिन ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस करती हूँ एक्सेप्ट एग्ज़ाम डे. और मोस्टली मैं उसके पहले वाले दिन पे पढ़ाई करती हूँ, बाकी सब कुछ होता रहता है ऐसे ही. सी एडवांटेज वन ऑफ दीज इज़ के मतलब उसके दादू जो हैं वो बाय प्रोफेशन हैं, जो नानू हैं इज़ एन एरोनॉटिकल इंजीनियर. तो उनके साथ में जब बैठते हैं तो टाइम पास के लिए चलो मैं पढ़ाता हूँ, तो उन दोनों से इसने बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली नानू, दे आर बड़ौदा बेस्ड. ओके. तो वो मतलब बैठ के मैथ सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं सारा, और छोटी सी जब से पढ़ रही है. तो इनफैक्ट जब उसका एडमिशन का भी बात आया था तो बाकी टेस्ट वगैरह होते हैं, शी जस्ट सेड दैट इंटरव्यू एंड क्लियर्ड, उसके बाद में कुछ नहीं रहा था. एंड थैंकफुली आज तक आप देखोगे इन ऑल ग्रेड शी हैज़ स्कोर्ड स्ट्रेट एज, ए+, मतलब कभी इससे नीचे कुछ नहीं आया है. मतलब प्रैक्टिस में भी ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, दोनों में A+ चल रहे हैं. या वेरी गुड. रमरा, टेल मी, आप खेलते भी हो फिर स्कूल भी जाते हो, बट मोस्टली आप वीकडेज पे भी और वीकेंड्स पे भी आप खेलते हो, आप टायर्ड भी हो जाते हो, तो इसको आप फन कैसे करते हो, इसको फन कैसे रखते हो इस गेम में, क्योंकि आप टायर्ड भी हो जाते हो, है ना? तो फिर इसको फन किस में डालते हो, ये बताओ. जैसे मैं ना जब खेलती हूँ तभी मैं गाने बजाती हूँ. मेरे पास एक सेव्ड प्लेलिस्ट है, उसको मैं स्पीकर पे बैकग्राउंड में बजा देती हूँ. तो उससे ना मुझे कंसंट्रेट करने को हेल्प मिलता है कि लाइक रिदम में रहता है. जैसे हर प्लेयर का होता है ना कि एक वे के कंसंट्रेट करो. जैसे वीरेंद्र सहवाग, मैंने उसका इंटरव्यू देखा था, तो ही वॉज ऑल्सो शेयरिंग के ही यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स व्हाइल बैटिंग. एक उनका इंटरव्यू भी था वो वीरेंद्र सहवाग सर का, हाँ. उसमें वो गाना गाते हुए फिर फ्लिक पे कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे, और फ्लिक में 6 मारा. सो मोर और लेस आइडिया इसके मतलब एक तरह की मोनोटोनस वो ना रहे. कितना 300-400 थ्रो डाउन दे रहे हो, बच्चा कितना खेलेगा, तो मैथ सिमुलेशन डाल देते हैं उसमें थोड़ा कि अभी मैं अगली 4 बॉल में से एक हेलमेट पे मारूंगा, एक यॉर्कर आने वाला है, ठीक है, 12 बॉल है, 12 बॉल में आउट नहीं होना है किसी भी तरीके से, राइट, स्टंप के बाहर का जो बॉल है छोड़ देना है. अभी लास्ट 4 बॉल बचे हैं मैच के, हर बॉल पे कम से कम 4 रन चाहिए. तो सिमुलेशन चलता रहता है, थोड़ा मैच सिचुएशन का प्रैक्टिस हो जाता है, और वो चैलेंज जो है दैट ब्रिंग्स बेस्ट आउट ऑफ हर, थोड़ा सा फन आ जाता है उससे. तो जैसे अगर मैं कंटिन्यूस एक ही बॉल खेल रही होंगी बोरिंग लगेगा ऑब्वियसली. कवर ड्राइव पे कवर ड्राइव, 40 बॉल 50 बॉल, उसके बाद कुछ तो चाहिए. ओके, तो आपने बताया आप जैसे आपने फ़न के लिए बात करी, बट फन के साथ साथ फ्री टाइम में फिर आप क्या करते हो? फ्री टाइम में तो सबसे पहले तो मुझे उतना फ्री टाइम मिलता है नहीं. पॉइंट है. बट अगर कभी कभी ब्रेक मिल जाता है तो एक मेरे पास 2 चीज़ें हैं जो मुझे करना बहुत पसंद है. सबसे पहले तो रीडिंग, मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद है. लाइक अगर मुझे बुक दे दो, आई विल डायरेक्टली स्टार्ट रीडिंग.
I won't stop. I won't stop myself. I will just start reading it if you give me a book. रीडिंग बुक, ओके. और दूसरा क्राफ्ट्स. मुझे क्राफ्ट करना बहुत पसंद है. मैं बहुत चीज़ें में से बना लेती हूँ. पेपर, ग्लू, स्टिकर्स, काउंटलेस थिंग्स ऐसे. और मेरी मम्मी बहुत सारे ऑफिशियल टूर्स पे जाती है. तो वो सोशल वर्कर है, इसलिए हर जॉब डिमांड्स हर टू go on tours. So that's why whenever she goes, I know she'll be tired. I know she'll be a bit like dozing. So I make her welcome cards to cheer her up. Very good. Yeah, And now- she's very creative. She used recycle things and convert them into absolute as per her age art pieces. She's very creative. In fact, she sent a card this year also, right? You sent the card, right? Yeah, to Ashley Gardner. Tell भैया. My favorite player. She's Ashley Gardner. So this WPL, Gujarat Giants. Yes, for Gujarat Giants captain Ashley Gardner, she made a A4 size card and sent it to her. We first of all we sent the picture that this is the card. They asked that we really want to present her, and we got the feedback that the card reached her and she really liked it. So she's very good and she's creative. आप गुजरात जाइंट्स की टीम के साथ भी आपने एक पूरा दिन स्पेंड किया था, एक मैच भी देखा था. वो एक्सपीरियंस कैसा था, एक बार वो बताइए. सबसे पहले तो स्टार्स को टीवी पे देखा था. Most of them are taller than what we see on TV. ओके. I don't know why this is. They are so short and even more fit. Everything was so grand and energetic. First, we met their social media manager. Okay. They said, "Let's make a reel." So, but for a reel, you need the jersey. So, he gave me the cap and the jersey. Then, I met all the team players, coaches, support staff, everybody. And then I tagged them off for the match. And I especially requested to meet Harleen Dior. इज फेवरेट प्लेयर. Yes, one of my favorite players. ओके. See, ये छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, मतलब जैसे बच्ची अपने अंदाजा से बताया, टीवी भी तो सारे छोटे छोटे देखते हैं. देखा तो मत, वो लड़कियां भी 6 फुटर है, एन एब्सोल्यूट फिटनेस आइकन. तो एक जो रियलाइजेशन आया कि नहीं, ये यहाँ पे है क्योंकि दे ग्राइंड डे इन डे आउट. मतलब उनकी फिटनेस देख के वो नज़र आ जाता है बंदों का. और वो एक्सपीरियंस ऐसा ग्रैंड था, जो ग्लैमर देखा, जो उनको लाइमलाइट देखी, और वो एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन इसके दिमाग पे क्रिएट हुआ है कि हाँ, दिस इज़ द प्लेस टू बी एंड ग्राइंड इज़ द ओनली वे. तो वो मोटिवेशन भी आ जाता है. ये अच्छा लग रहा है आपको, यहाँ पे पहुँचना है, गुड, सो ग्राइंड करो. मुझे आप थकान वाला बात कर रहे थे ना, वहाँ पे ये भी काम में आता है. स्टार बनना है, ग्राइंड इज़ द ओनली वे. बढ़िया. तो आप डगआउट में भी बैठे थे, आप बॉक्स में भी बैठे थे मैच देखने के लिए. आपके माइंड में ऐसा थॉट पड़ा कि मैं भी एक दिन ऐसा खेलूंगी, इस तरीके से शॉट मारूंगी, ऐसा कुछ हुआ था? भाई डगआउट में गई, अलग ही दुनिया था. It was separated into so many rooms for the players. Heaven. First we saw their strategy room, जहाँ पर बहुत सारा मोटिवेशनल स्टफ था, वाइट बोर्ड था, और प्लेयर्स के नाम और जर्सी थे, जर्सी नंबर सॉरी. फिर जब हम अंदर गए, हमने देखा एंटरटेनमेंट रूम. वहाँ पर टीवी था, छोटे छोटे बोर्ड्स थे जहाँ पर आप लूडो खेल सकते हो, टेबल टेनिस खेल सकते हो, पिकल बॉल. और हमने प्लेयर्स के प्लेयर एडिशन किट देखे. भाई इतने मोटे, लाइट वेट, फेदर. मुझे समझ नहीं आ रहा था. आई वॉज सो टेम्पटेड टू टेक ऑन, बट देयर वाज नॉन ऑफ माई साइज. So again, what she understood is this is the best stuff, and to get the best, you have to be the best. मैंने पूछा था, मैंने को गियर और किट आपको पसंद आया? बोले हाँ. मैं मार्केट में नहीं मिलता, प्लेयर एडिशन है, सिर्फ प्लेयर्स को मिलता है. तो यू हैव टू बिकम अ वेरी गुड प्लेयर. हम भी खेलेंगे, हम भी बनेंगे, मेहनत करेंगे, हाँ. है कि नहीं? ओके. रामरा, मेरे को ये बताओ कि आप ब्रांड शूट के में भी गए थे आप, तो वो हाँ. एक्सपीरियंस कैसा था आपका? भाई साहब, तो पहले तो नाइकी के टीम ने हमें इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया. नाइकी की टीम ने? हाँ.
Very good. So they said like, you are one of the ones who are going to be selected, and the selection was based on Instagram and cricket skills. Mm-hmm. So Papa sent them videos and photos of my cricket, and Instagram तो उन्होंने देख ही लिया था. So and then they DM'd us, I'm selected. I was so happy. Then they booked the hotel for us. They booked the flight for us. I was so happy that I was taking my own parents to Mumbai. Then as soon as we reached there, we thought that we are just gonna get a cab and go to the hotel. But no, there was a big car waiting outside with the driver standing with my name like this. I was so surprised. I didn't know this happens in real life. I thought this happens in movies. So we stayed there for 2 days. भाई सेट में गए, इतना बड़ा, कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई साउंड का कर रहा है, कोई फ़ोटो खींच रहा है. भाई साहब लाइट्स अलग अलग, लाइट कैमरा एक्शन, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है. थोड़ा डर लगा था आपको वहाँ पे? नहीं, मतलब थोड़ा सा पोजिंग करना था और वहाँ पर एक कास्ट डायरेक्टर थे, तो ही हेल्प मी विद द पोजिंग ऑल्सो. ओके. The name of the shoot was Nike #Born to Beat the Odds shoot. Amazing. Campaign was #Born to Beat the Odds by Nike. मुंबई में आइकॉनिक स्टूडियो, द आइकॉनिक महबूब स्टूडियो ऑफ मुंबई. भाई साहब इतना बड़ा था ना, आई कैन टेल यू, इट वाज सो बिग. आप अकेले थे वहाँ पे या फिर आपके साथ कोई और भी इंडिविजुअल्स थे वहाँ पे? हाँ थे. पूरे इंडिया में से 5 to 6 पीपल को चूज़ किया था ऑल ओवर इंडिया. See, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एज अ पेरेंट आप ऐसे इमोशनल बोल लीजिए, प्राउड बोल लीजिए. वी हैव ट्रेवल्ड अ लॉट इन आवर लाइफ, ठीक है, पर्सनल प्रोफेशनल, बट मतलब अभी ये 8 साल की भी नहीं हुई, एंड दैट वाज अ इमोशनल मोमेंट फॉर अस कि इसके कारण वी आर फ्लाइंग, राइट, वी आर स्टेइंग इन अ वेरी गुड होटल. तो 2 दिन के लिए होटल में रहे. महबूब स्टूडियो मैंने खुद ने नहीं देखा, सिर्फ नाम सुना था. इट सेल्फ इज़ मतलब ग्लोबल मैप पे भी अगर आप देखेंगे इट्स आइकॉनिक प्लेस. तो वहाँ पे मतलब आर्ट डायरेक्टर्स वगैरह आप देखें, मूवी डायरेक्टर्स देखें, वो जगह देखना, इसका उस बड़े स्टेज पे होना, मतलब एक्सपीरियंस वाज ऑसम. एंड शी ऑल्सो अंडरस्टूड कि मतलब जो ग्लैमर टीवी पे दिखता है वो कैसे क्रिएट होता है. एंड अगेन एक और जो उसको समझ में आया कि इट इज़ रिजल्ट ऑफ माई कंसिस्टेंट हार्ड वर्क. तो आई कीप ऑन रिपीटिंग ग्राइड इज़ द ओनली वे. मैं आके भी पूछा, यू लाइक द एक्सपीरियंस? मैं कहा यस. यू वांट मोर? देन यू नीड टू ग्राइंड मोर. So that was an amazing experience, especially at this young age, doing a brand shoot for brand like Nike. That is amazing. And entire thing was handled by their agency, and they were thorough professionals. For sure. ये तो रामरा ने हम वहाँ पे कुछ सीखा इतनी बड़े स्टेज पे जाने के लिए. आई मीन जब हम वहाँ पे गए, देखा इतनी सारी चीज़ें होती हुई वहाँ पे, अब क्या 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 आपने वहाँ पे सीखा? कोई लिफ्ट नहीं है बड़ा स्टेज के लिए, हज़ारों सीढ़ियाँ हैं. हर दिन एक अपॉर्चुनिटी है उन सीढ़ियों को चढ़ने के लिए. जिस दिन आप उस स्टेज को पहुंच जाओगे, उस दिन मान लो आपका ग्राइंड रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाँ यू हैव डन हार्ड वर्क. सो वही ग्राइंड इज द ओनली वे टू सक्सेस. And eventually whatever anybody will achieve in his or her life, it is just reflection of the grind. Somebody may call it struggle, but whatever you are doing day in and day out, it is result of that. It is just a reflection. आज कोहली की greatness पे सारे बात करते हैं, but you ask any players about his work ethics, you will understand why Virat Kohli is Virat Kohli. Totally different one of players. Yes, I keep on showing her such content that why these players have become such great players. Okay, हमने सबकी बात करी. एक मेरे को ऐसा क्वेश्चन आ रहा है. मैं सोच, अगर अभी हम आँख बंद करके ये चीज़ें करें कि आप आँख बंद करो और इमेजिन करो कि आपके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. यू आर गोइंग टू प्ले फॉर इंडियन टीम
ठीक है, कैसा इस सिचुएशन होगा, कैसा आप कैसा फील करोगे उस टाइम पे? तो मैं वो लिटरली रोज विजुलाइज करती हूँ। ओके, तो पूरा स्टेडियम होगा फिल्ड विथ पीपल, एंडलेस, एंड दे आर शाउटिंग इंडिया इंडिया इंडिया, एंड व्हेन आई केम आउट टू बैट दे आर लाइक रमरा रमरा रमरा, everyone yelling my name, and my father among them, loudest, with the signature King Kong. He be like example. I'll be there. So that is the end goal, to win loads of ICC tournaments and trophies for India. okay. Ramra, you been training with your coaches as well as with your dad also. So किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, पापा के साथ या फिर ट्रेनिंग कोचेस के साथ? पापा के साथ, नहीं कोचेस के साथ? तो पापा का बहुत हाई एनर्जी रहता है, तो दैट ऑलवेज कीप्स मी अप कि कुछ आउट हो गया तो ही लाइक encourages me to do it more. Then coach has good understanding of technique and process, so that also helps. But if I'm given an option, I would go with coach because dad won't say yes, like, but he is way too strict. कोचेस थोड़ा नॉर्मल रहते हैं ऐसा? Yes, bit. I have to constantly switch, no, from father mode to coach mode. कोच मोड में आ जाता हूँ तो मतलब एट टाइम्स ही कॉल मी, मेरे पापा में अपरिचित आ गया है पापा चेंज हो गए। कोचेस थोड़ा नॉर्मल रहता है ना, तो उसके लिए थोड़ा बच्चों के लिए हाँ बच्चा है, बट डैड इज डैड। लेकिन देयर इज अ थिंग आल्सो ना, बहुत अच्छा खेले ज़्यादा बोल दो तो होता, तो यस आई एम वेरी माइजर इन प्रेजिंग हर। हाँ ठीक है, क्या हो गया, फिर से करके दिखाओ, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5वें गलत, देखा मैंने कहा था गलत होगा। सो हमारा नोक झोंक चलता रहता है, अगेन दैट बैंटर कीप्स द प्रैक्टिस फन। Ramra, tell me what kind of exercise do you do to keep up into the game? ओके, तो मेरे पास बहुत सारे कैटल बेल्स है, डम्बेल्स है। डम्बेल्स तो 1 से 25 तक है और कैटल बेल्स 1 से 24। तो पता है मुझे, मैं बड़े नहीं उठा सकती, पर जो मेरे साइज़ के वो मैं उठाती रहती हूँ, तो ऐसे मेरा वर्कआउट हो जाता है। और मैं मेरी मम्मी के साथ सुबह में वर्कआउट कर लेती हूँ, जैसे फुल बॉडी वर्कआउट, फिर मैं फुल बॉडी वर्कआउट कर लेती हूँ, फिर बैक वर्कआउट कर लेती हूँ, नो जंपिंग वर्कआउट कर लेती हूँ, ऐसा सब कुछ। फिर मम्मी योगा भी करती है, तो योगा में भी जॉइन आउट हो जाती हूँ। मेरे पास एक बार है जो दरवाजे के बीच में अटक जाता है ना, हाँ। वही मंकी बार, उस पे ऊपर मैं लटकती रहती हूँ। पुलअप्स करते हो आप? हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ अभी। ओके, तो अभी मुझे ग्रेजुअल इम्प्रूव होना है पुलअप्स पे। राइट, इसके साथ में मतलब सारे जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं इसकी ट्रेनिंग के, बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए लाइट वेट कैटल बेल डंबल वर्कआउट्स वगैरह हो जाता है, बाकी योगा वगैरह फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रहता है। अभी जो फोकस चल रहा है साथ में एंड्योरेंस के लिए, तो ये हिट करती है, मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, स्प्रिंट्स वगैरह पे फोकस चल रहा है, क्योंकि इवेंचुअली जितना रन करेगी, जितना पैरों में जाना आएगा, वो इसको आगे जाके हेल्प करेगा। लंबे इनिंग्स खेलने हैं, 20-20 ओवर का मैच हो या फिर वनडे 50 ओवर का आपका है, एंड्योरेंस और ये जो बॉडी का स्ट्रेंथ है, ये हमेशा काम आएगा। अभी छोटी है बट फोकस चल रहा है, गाती है। इनफैक्ट ये रोज़ ऑलमोस्ट एक घंटे तक साइकिल चला रही है विदाउट फेल, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प हर। ओके। रामरा, मैंने ये भी सुना आपके बारे में कि यू आर वेरी स्पिरिचुअल, तो इसमें इंटरेस्ट कैसा है? आई मीन स्पोर्ट्स में भी हो आप पढ़ाई में भी कर रहे हो, आप घर में क्या मस्ती भी, और आप स्पिरिचुअल भी, कैसे? मतलब इसको थोड़ा फोकस करो इस पर। तो जब मैं छोटी सी बेबी थी, छोटी सी, ओके, मतलब मेरी मम्मी मुझे बहुत स्टोरी सुनाती थी, रामायण पुराण से, फिर महाभारत से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काउंटलेस स्टोरीज। तो ऐसे ही मुझे डेवलप किया इंटरेस्ट, थैंक्स टू माय मॉम, शी इज़ ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल। तो ऐसे ही मैंने डेवलप इंटरेस्ट किया, और मम्मी यूज्ड टू हेल्प मी अंडरस्टैंड द मॉरल ऑफ द स्टोरीज। जैसे गणेश जी और कार्तिक जी का स्टोरी, व्हेन दे वर आस्क्ड बाय माता पार्वती एंड
Mata Parvati and Shivji to go around the world 3 times. While Kartik ji went to go around the actual world, Ganesh ji just took 3 rounds around Mata Parvati and Shivji and said, "You are my world." This taught me to respect your parents, elders, friends, and everyone who plays an important role in your life. तो ऐसे ही मुझे समझ आया कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी थोड़ा है मेरे अंदर। और अभी मैं अपने आप बुक्स पढ़ सकती हूँ, तो मेरी मम्मी को मैं पूछती हूँ कि जैसे वो ऑफिशियल टूर्स पे जाती है, मैंने बताया था, तो मैं उनको कहती हूँ कि मम्मा एक बुक ले आओ ना। लाइक एक्चुअली आई एक्सपेक्ट अ बुक फ्रॉम हर। बुक आती है फिर आपके हाँ, लिए? आती है। पढ़ते भी पूरा? बहुत अच्छा लगता है मुझे बुक्स पढ़ना। तो अगेन गेम के एस्पेक्ट से भी देखें, स्पिरिचुअलिटी और थोड़ा कामनेस जो है वो हमेशा काम ही आएगा। एंड थैंक्स टू हर मदर शी हैज़ डेवलप्ड दैट साइड ऑफ इट। एंड एट द सेम टाइम मतलब जो कर्मा वाला फिलॉसफी है, शी यूजेस दैट इन हर ओन वे। फॉर एग्जांपल जैसे श्री कृष्ण का है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, शी हैज़ डिवाइस्ड हर ओन के श्री कृष्ण का है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वो अपने आप मिल जाएगा। तो बॉल खेलो, एक टाइम पे एक ही बॉल पे फोकस करो, अगली की चिंता मत करो। तो ये अपने फंडे बनाती रहती है स्पिरिचुअलिटी से, और जहाँ तक वैसे इसके गेम में हेल्प कर रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, रामरा, मैंने सुना है कि आप बुक रिव्यू भी आपने एक किया है, तो क्या मतलब किस तरीके की बुक आपको पढ़ना पसंद है? एक बार हमको बताइए ज़रा। ओह यस, सो ये मेरे पापा का आइडिया था। तो जो बुक्स मुझे मेरी मम्मी देती है, वो आई लाइक टू डू दिस, लाइक आई रीड देम, आई टेल द स्टोरीज टू मॉम। सो डैड सेड, व्हाई डोंट यू शेयर योर थॉट्स विद मोर पीपल। मुझे तो आइडिया अच्छा लगा। तो माई फर्स्ट बुक रिव्यू इज़ ऑन डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री, and it is written by my favorite author Sudha Murthy. It has stories about Mata Durga, Mata Saraswati, Mata Lakshmi and Mata Parvati. It is about how a female can be loving, kind and powerful all at the same time. ओके रामरा, टेल मी हु इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर इन रामायण एंड महाभारत? हमने सुना अभी कि आपके मामा आपको बताते थे, कहानियाँ सुनाते थे, तो कौन है उनमें से फेवरेट कैरेक्टर आपका? Mahabharat is one of my favorite epics. It is also known with different names. Few of them are Jaya Samhita, Bharata, and finally Mahabharat. These names have different meanings based on the verses covered in them. जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाते हैं, क्यों सुनाते हैं? क्योंकि अर्जुन घबरा गए थे। तो देखा उन्होंने सामने उनके 100 भाई खड़े थे, पितामह भीष्म खड़े थे, गुरु द्रोण खड़े थे। वो उनके खिलाफ कैसे लड़ सके? इसीलिए उन्होंने कहा, इस युद्ध का क्या ही फ़ायदा, मैं अपनों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। पर फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया। गीता का सबसे बड़ा लर्निंग है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसी को मैं जब मैं खेलती हूँ, मैं इसी को अप्लाई करती हूँ। अगले बॉल का नहीं सोचना है, इस बॉल पे फोकस करना है, बाकी सब भगवान जी देख लेंगे। ओके रामरा, हु सपोर्ट्स योर ड्रीम? मम्मा, पापा, फैमिली, सब कोई? कौन करता है सबसे ज़्यादा? हाँ, तो मेरे फैमिली में मेरे मम्मा पापा सबसे ज़्यादा मेरे ड्रीम को सपोर्ट करते हैं। दे आर माई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन। वाइल मैं तो इंटेंसिटी पे फोकस करती हूँ, गेम पे फोकस करती हूँ, मम्मी पापा मेरे को खुश रखना और प्रैक्टिस को फन रखने पे फोकस करते हैं। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना काइंड ऑफ डिवाइडेड है। सो मेंटल साइड इज़ टेकन केयर बाय हर मदर, तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से हो जाता है, थोड़ा योगा से हो जाता है, बुक रीडिंग वगैरह जो है क्राफ्ट है
तो उसके ज़रिए थोड़ा मेंटल साइड अच्छा रहता है, मोटिवेटेड रहती है। जहाँ पे स्पोर्ट्स की, इसके गेम की बात आती है, इसके लिए बेस्ट क्रिकेटिंग बैट्स, बेस्ट गियर, बेस्ट बॉल्स, बेस्ट ओवरऑल कोचिंग स्टफ एक्सेट्रा, वो मेरा पार्ट आ जाता है। तो दोनों बैलेंस रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बटी हुई हैं, एंड शी गेट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो लाइक अगर बुक चाहिए मम्मी से बार्गेन करो, बैट चाहिए पापा को बार्गेन करो। रामरा, अब हम आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर करने वाले हैं, ठीक है? आप, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जस्ट वन वर्ड में आंसर देना है, ओके शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट, Okay. ठीक है? ओके, कितना शॉट? तो हु इज योर फेवरेट मेल क्रिकेटर? विराट कोहली, विराट कोहली। फीमेल क्रिकेटर? स्मृति मंदाना, हु लव्स यू मोर इन योर फैमिली? एवरीबॉडी। ओके, हॉट शावर्स और कोल्ड शावर्स? कोल्ड। ओके, वीकडेज और वीकेंड्स? वीकेंड्स। फेवरेट क्रिकेटिंग शॉट? कवर ड्राइव। टफेस्ट बॉलर यू फेस्ड? डैड। Okay, playing with your dad or playing with your coach? कोच। Ramra, what made you say yes to this game? शुरू तो कैजुअली ही किया था, बट डैड डिडंट वांट मी टू लर्न द लॉन्ग टेक्निक। तो हमने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पर अच्छा इन्फॉर्मेशन हो और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड ड्रिल्स हो, ताकि ड्रिल बाय ड्रिल अच्छा टेक्निक सीखा जा सके। तो पापा ने थोड़े चैनल्स पापा को मिल गए कि अच्छे हैं, ऐसे हमने घर पे ही प्रैक्टिस शुरू किया था। मैं बहुत छोटी थी इसीलिए, तो ऐसे ही ड्रिल बाय ड्रिल मेरा अच्छा होने लगा। और एंड में पापा वाज रियली हैप्पी कि हाउ नाइसली आई अडॉप्टेड। सी, अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं, आज कंटेंट इतना है कि मतलब इट्स अ सी ऑफ कंटेंट ओवरऑल। उसमें से सही कंटेंट पिक करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। आज अगर आप सिंपल खेलने की बात करें तो कुछ लोग शोल्डर डिप करा रहे हैं, कुछ हाफ कॉक प्रैक्टिस करने की बात करें थोड़ा पैर निकाल के, एंड देयर इज़ अ स्कूल ऑफ क्लास एंड थॉट कि वो किस तरह से खेल रहा है, फिर बैक फुट पे जाके वो मार रहा है। तो एज अ पेरेंट या एज अ मतलब पेरेंट ऑफ एथलीट, आपको सही कंटेंट चूज़ करना और सही चैनल सेलेक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि सही सीखे बच्चा जो उसके काम आ सके। गलत टेक्निक सीख लिया, फिर एक ही चीज़ की 4 टेक्निक सीखा, कुछ भी काम में नहीं आएगा। इट वॉज रियल चैलेंज टू फाइंड गुड channels which have a structure and level 1 to 3 to how to achieve that excellence in that particular stroke, whether you talk about batting or bowling. कंटेंट बहुत है, बट सही कंटेंट चूज़ करना और जो आप उसको फॉलो कर सको, दैट वाज द चैलेंज। एंड आई वाज रियली हैप्पी जो उसको सिखाया गया था कि बैकलिफ्ट ही होना चाहिए या आपका स्टांस इस तरह से आना चाहिए। शी पिक्ड अप रियल क्विक। एल्स मैं नॉर्मली जल्दी तारीफ नहीं करता हूँ। आई वाज हैप्पी। And what's your view on women's cricket, sir? Women's cricket is going to go places. It's doing very well. क्रिटिक्स जो हैं वो एट टाइम्स इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे कि वुमेंस क्रिकेट उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा है। वो सही भी हैं उस बात में, बट एट द सेम टाइम अगर आज के 5 साल पहले बोलते कि WPL के 5 साल के राइट्स 951 करोड़ में बिकेंगे, कोई मानता नहीं। तो जो रेवेन्यू की बात करते, फिर मैं उन्हें रेवेन्यू की लैंग्वेज में समझाता हूँ। रेवेन्यू स्पोर्ट्स से नहीं आएगा, रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट से आएगा, राइट। 83 के टाइम पे इंडिया का मेंस का क्रिकेट कहाँ पे था, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट होने लगा, और आज देखिए हम एक क्रिकेट का पावर हाउस बन चुके हैं। वुमेंस क्रिकेट का भी आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जाके अभी हमारी लड़कियों ने वहाँ पे उनको T20 में हराया है। जो T20 में आपने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, सबसे ज़्यादा मेहनत हुई है, आपको रिजल्ट दिख रहे हैं। तो वुमेंस क्रिकेट इज़ नॉट अबाउट स्ट्रेंथ कि वो बैंग बैंग उतना लड़कों जितने लंबे छक्के मार रहे हैं, नहीं मार रहे हैं। आप अपॉर्चुनिटी दोगे, इन्वेस्ट करोगे, रिजल्ट्स आएंगे। वुमेंस क्रिकेट अगर आप ग्रोथ फैक्ट का भी आप फैक्टर देखोगे, मेंस वर्सेस वुमेंस परसेंटाइल में अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू और ग्रोथ उनकी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मेंस क्रिकेट में इवेंचुअली एक सैचुरेशन आ ही गया है। ओके सर। सर, हमने ये भी सुना है, मतलब हमने बात करी थी इसके बारे में कि आप होम स्कूल के बारे में सोच रहे हैं, रामरा के बारे में, ऐसा क्यों? नॉट सी, होम स्कूल थोड़ा रेडिकल आइडिया है, बट पॉइंट इज सारे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं उनका आंसर बेसिक्स में है। फोकस किस पे करना है रमरा को, पढ़ाई पे या क्रिकेट पे? तो पहला गोल जब क्रिकेट है तो थॉट का क्लैरिटी आ गया। अभी स्कूल में सुबह जाना है, मॉर्निंग की प्रैक्टिस सबसे एसेंशियल होती है। बहुत ज़्यादा धूप वगैरह हो जाती है, एकेडमीज़ साथ में खेलने वाले लोग वो मॉर्निंग में ईजीली मिलेंगे, सारे स्कूल्स मॉर्निंग में हैं, राइट। अभी प्रैक्टिस अगर करना है तो फोकस प्रैक्टिस पे ही रहेगा। दैट इज़ वाई वी आर प्लानिंग अबाउट होम स्कूलिंग। तो ऑनलाइन स्कूलिंग थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा,
एंड शी विल हैव दैट टाइम, जो दिन का डाउन टाइम है उसमें पढ़ाई हो जाएगी, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे क्रिकेट पे फोकस कर सकेंगे। ठीक है सर, हम इसमें बात करें कि चैलेंजेस क्या क्या आए थे, आई मीन अभी आ रहे हैं या फिर आने वाले, आपको लगता है कि ये सब आ सकते हैं अभी, तो उसमें क्या क्या है? हाँ सी चैलेंजेस आप और मैं भी नीचे सड़क पे निकलेंगे देख जाएंगे। अगले 10 जो हमारे लोकल मैदान या लोकल जगह पे खेल रहे हैं, वहाँ पे 10 के 10 में सिर्फ लड़के खेल रहे हैं, अभी भी लड़कियों के ग्रुप्स वैसे नहीं खेल रहे हैं। तो गर्ल चाइल्ड को थोड़ा और मोटिवेशन चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को थोड़ा मोटिवेट करें, वो क्रिकेट खेलें। गियर से लेके मतलब अगेन इसका अभी बैट का साइज़ इज़ बिटवीन 3 and 4 तो वो कस्टम उस तरह का मिल पाना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी मुश्किल ही होता है। काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और साथ में जो वेट कैटेगरीज को चाहिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। छोटे बच्चों के लिए मतलब या इनके वुमेंस की जो बॉल्स है वो फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो उनके लिए वेंडर ढूंढना, मंगा पाना। एंड अगेन सो जो चैलेंजेस आते हैं ख़ास तौर पे जो सोसाइटी वाले जो हैं, वो 4 लोग जो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। मतलब द मोमेंट आई टोल्ड देम कि मैं होम स्कूलिंग का सोच रहा हूँ, ओहो हो ये तो मतलब पता नहीं क्या ही करना चाहते हैं। तो ठीक है, यू हैव टू फिल्टर द वॉइस फ्रॉम नॉइस एंड कीप ऑन गोइंग। लोगों को काम में कहना कहते रहेंगे, यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर ओन गोल। ओके सो सर, इसके बारे में हमें बताइए कि कैसे आप अगले 2 साल इसके कैसे आपने प्रिपेयर करें, इसके लिए आप क्या देखते हैं इसके आगे के लिए? सी अगेन शी इज़ वेरी यंग एंड बाय स्ट्रेंथ बाय बॉडी शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर मैं बैटिंग का बात करूँ, शी हैज़ अ किलर स्विंग, और ये इसकी एज से बड़े जो लड़के हैं उनसे लंबा हिट करती है। बॉलिंग का मैं बात करूँ, इसकी एज के जो बच्चे हैं वो 2 या 3 कदम छोटे पिच से रन अप लेकर वहाँ से मतलब छोटे पिच से बॉलिंग करते हैं, क्योंकि बॉल पहुँचती नहीं है। ये पूरे पिच से बॉल करती है एंड शी बॉल्स विद अ गुड पेस। अ लेग स्पिनर हु इज़ बॉलिंग विद पेस, अगेन इट विल बी अ रेयरिटी इन फीमेल क्रिकेट। अभी जो हमारे ट्रायल्स भी हुए थे स्पीड स्टार वाले, उसमें मैक्सिमम शायद 110 के अंडर ही था। आई एम एक्सपेक्टिंग हर टू बोल हर फास्टर वन ऑलमोस्ट एट 100। तो शी हैज़ गुड सेटअप। अभी जो काम चल रहा है बेसिक टेक्निक पे चल रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें सीखी है, साथ में मतलब कुछ वो डिफ़िकल्टीज़ भी आई हैं कि टेक्निक वाला है, तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे काम चल रहा है। फाउंडेशन एक बार अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो बाद में उस पर बिल्ड हो जाएगा। तो अभी फुट मूवमेंट हो गया, बॉल वॉचिंग हो गया, ऑलमोस्ट 300 से 400 ये टी कोन्स मारिए। फ्लैट में रहते हैं, उतनी बड़ी स्पेस नहीं है, बॉल वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, बट टी कोन्स आर सेफ, तो टी कोन से करती रहती है। सामने मिरर लगा हुआ है, मिरर में प्रैक्टिस करती है। तो ग्रेजुअली 6-6 महीने के प्लान बना रखे हैं कि अगले 6 महीने बेसिक पे फाउंडेशन पे काम करना है, उसके बाद में बॉल्स के साथ में शुरू होगा, देन शी विल बी प्लेइंग विद द बॉयज़ एंड ऑल। तो माई आइडियाज़ इफ़ शी प्रैक्टिसेस विद द बॉयज़ लॉट, डेफिनेटली गर्ल्स विल बिकम वेरी ईजी फॉर हर एंड ऑफ कोर्स चीज़ें स्मूथ चलती रहेंगी। अभी होम स्कूलिंग के साथ में थोड़ा स्ट्रक्चर आ जाएगा, अभी टाइम नहीं मिल पाता थोड़ा फिज़िकल एस्पेक्ट पे काम करने के लिए, तो उस पर थोड़ा काम करेंगे, बिकॉज एंड्योरेंस वगैरह आएगा तभी आप लास्ट कर पाओगे। दैट इज़ द प्लान। ओके सर, हमने इस पे हम एक मेरे को ऐसा लगता है कि शायद एक पेरेंट का व्यू क्या होना चाहिए। एक अगर जैसे हमने देखा है कि अब स्पोर्टिंग कल्चर जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो एक पेरेंट का व्यू अपने बच्चों को लेके क्या होना चाहिए इस पे? किसी की मत सुनो आप, स्पेशलिस्ट जो हैं सबसे ज़्यादा जिनकी रिस्पेक्ट होती है एटलीस्ट उनकी तो सुनो। लाइक मेरे दादाजी कहते थे हर खड्डे में खुद को कूदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आप समझदार लोगों को या फिर बेवकूफ़ लोगों को देख के भी सीख सकते हो, राइट। तो अगर इंडिया में बात करें एब्सोल्यूट लेजेंड्स की क्रिकेट की आप बात करोगे तो विराट कोहली, राइट, सब पसंद करते हैं, राइट। उनके वर्क एथिक से लेके खेलने का स्टाइल सारी चीज़ें अच्छी है। विराट कोहली के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ने कहा है कि पेरेंट्स और सोसाइटी एट टाइम्स स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज नहीं करती है। बट आप मुझे बताओ कौन सी स्टडी है जो आपको प्रेशर हैंडल करना सिखाएगी, राइट। कौन सी स्टडी है जो आप अगर कभी गिर गए हो लाइफ में, व्हेनेवर यू आर डाउन, आपको वापस से खड़े होकर फिर से फाइट करना सिखाएगी। कौन सी स्टडी है, कौन सा कोर्स, कौन सा आपका बुक्स का चैप्टर है जो आपको डिसिप्लिन सिखाएगा। स्पोर्ट्स से जो लर्निंग है दैट इज़ लाइक प्योर गोल्ड। तो ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि वो सिर्फ किताबों के अलावा बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ भी पुश करें। स्पोर्ट्स विल बिल्ड देयर कैरेक्टर विच विल लास्ट फॉर देयर लाइफ। इवन आप जो बड़े CEOs वगैरह की स्टोरीज उठा के देखोगे, उनकी हिस्ट्री में दे वर पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, राइट। तो स्पोर्ट आपको लीडरशिप से लेके आपका बेसिक डिसिप्लिन सब सिखाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू एजुकेट द पेरेंट्स, और रादर द पेरेंट्स शुड लर्न अबाउट इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल देन। अब आपको 3 छोटे से काम करने हैं। सबसे पहला, आपको ये वीडियोस मिनिमम से मिनिमम किसी एक नॉन इंडिविजुअल को जरूर शेयर करनी है, ताकि हो सके उसको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ एक नया परसेप्शन चेंज हो सके, उसको कुछ नया जानने को मिले। दूसरा, आपको ये वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करनी है।
और तीसरा, अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ भी अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालेंगे, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जय हिंद।